فلسطین، یروشلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ سفرونیس نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے آگے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امان اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے۔ حضرت عمر کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی تھی۔ اتنی بڑی امپائر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اتنی بڑی امپائر کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بنے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی کافی بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے اور یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یروشلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کی ہسٹری کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی یروشلم کو فتح کیا اس نے اس سٹی کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا ہے۔ اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس سٹی کو تباہ نہ کرتے۔ سفرونیس نے یروشلم سے اپنے بادشاہ ہرقل سے مدد بھی مانگی، لیکن 4 مہینوں تک کوئی مدد نہ ملی، تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس نے سرنڈر سے پہلے ایک بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی۔ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب خود آ کے مجھ سے ملے، کیونکہ سفرونیس کے دل میں یروشلم کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی امید باقی تھی، اور وہ تھی خلیفہ حضرت عمر، کیونکہ سفرونیس نے حضرت عمر کے بارے میں بار بار سنا تھا، کیونکہ حضرت عمر باقی تمام بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلانا بھی پسند نہیں کرتے، اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہونے کے بعد بھی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر کے یہی سادگی کی چوریز پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی کہ ایک بار ایک رومن جنرل مسلمانوں کے کیپٹل آیا اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ عمر سے ملنا ہے۔ اس بادشاہ کا خیال تھا کہ حضرت عمر ضرور کسی محل یا پیرس میں رہ رہے ہوگے۔ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے پوری دنیا کانپتی ہے، ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی اسی سادگی کا سفرونیس کو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے مجبوراً حضرت عمر کو خط لکھا، بغیر کسی خون خرابے کے یروشلم کو صرف آپ ہی فتح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے تمام بڑے صحابہ کو اپنے سامنے جمع کیا اور پوچھا اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے یہ رائے دی کہ حضرت عمر کو یروشلم کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بہت پسند آئی۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی بار مدینہ کو چھوڑ کے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں رومن امپائر میں بھی مسلمانوں کی فوج اپنے خلیفہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ جانے سے پہلے حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور مدینہ کی پوری ریاست کو حضرت علی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ پہلی بار عرب کا خلیفہ عرب سے باہر نکل رہا تھا۔ اتنی بڑی اسلامی امپائر کا خلیفہ مدینہ سے یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے فلسطین تقریباً 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس کو کور کرنے کے لیے پورا 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے بھی
हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, खाने पीने की चीजें और कुछ साहबा मौजूद थे। जैसे ही हजरत उमर वहाँ इंटर हुए तो वहाँ खालिद इब्न वलीद और यजीद बिन सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही महंगे कपड़े पहने। जब हजरत उमर ने इनके महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज़मीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके। ये तुमने क्या पहना है? इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन के तरीके अपना लिए। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुँचे वहाँ यरूशलेम के एक क्रिश्चियन को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यरूशलेम आ गए। तो सफरोनियस ने अपना लेटर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को भेजा और यहीं पे हजरत उमर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट साइन किए जिसे दुनिया आज तक याद रखती है। ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने यरूशलेम को इस तरह फतह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए है कि अगर वो यरूशलेम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी ज़मीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स देना होगा। इस एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ पे क्लैश आया, यहूदी, क्योंकि क्रिश्चियन यहूदियों से इतनी नफरत करते थे। उमर ने यहूदियों के यरूशलेम आने पर पाबंदी लगा दी थी और यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी। क्रिश्चियन ने यरूशलेम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी। फिर मुसलमानों ने पहले की तरह यहूदियों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हजरत उमर को ये बात पसंद नहीं आई। फिर हजरत उमर ने इस एग्रीमेंट में लिखा, यहूदी जब भी चाहे यरूशलेम आ सकते हैं लेकिन यहाँ आबाद नहीं हो सकते, क्योंकि हजरत उमर जानते थे कि अगर यहूदी यहाँ आबाद हुए तो क्रिश्चियन और यहूदियों में बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन के लिए बहुत होली है। हजरत उमर का ये एग्रीमेंट इतना ब्रिलियंट था कि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी यहाँ ज़बरदस्ती आबाद हुए तब से लेके आज तक फ़लस्तीन में अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल गवाही लिखी। इस मायदे से सबसे ज़्यादा खुशी यहूदियों को हुई क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदी 600 साल गुजरने के बाद अपनी सबसे मुक़द्दस जगह फ़लस्तीन को दोबारा दी। बगैर किसी खून खराबे के यरूशलेम को मुसलमानों ने फतह कर लिया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हर क्रिश्चियन की ज़बान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और हजरत उमर पहली दफ़ा मुसलमानों का हेड क्वार्टर छोड़कर यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। जब हजरत उमर मुसलमानों की फ़ौज के करीब पहुँचे तो हजरत अबू उबैदा और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल ने जब हजरत उमर के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके नए और महंगे कपड़े पहने। और मुसलमान हजरत उमर की सवारी के लिए एक शानदार घोड़ा भी लाए। लेकिन हजरत उमर ने उन सब से कहा कि एक ज़माना था हम अरब में सबसे कमज़ोर थे और हमें जो आज इज़्ज़त मिली है ये हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी है और बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। हजरत उमर और रास्ते में ये दोनों बारी बारी एक ऊंट की सवारी करते थे
और जैसे ये यरूशलेम पहुंचे, उन पर हजरत उमर नहीं बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे। ये स्टोरी हमने बचपन से बार बार सुनी है, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल गलत है, जो इस्लामिक हिस्ट्री की भी बड़ी बुक में नहीं मिलती। और ये वाकया लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की फौज ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। उनके और यरूशलेम के गेट दरमियान इतना फासला था ही नहीं, इसके लिए ऊंट को बार बार चेंज किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की फौज में हजारों ऊंट थे और उनमें से भी कोई ऊंट इस्तेमाल कर सकते थे। सब चीजों को देखकर यही लगता है बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से बनाई। और इस्लामिक हिस्ट्री की लेटेस्ट बुक तारीख़े उम्मत मुस्लिमा में भी इस वाक़या को गलत कहा है। हजरत उमर सीधा यरूशलेम में इंटर और वहाँ के सारे लोग उनकी सादगी देख बहुत इम्प्रेस हुए। यरूशलेम में क्रिश्चियन के लीडर रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए, जो आज तक क्रिश्चियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। हजरत उमर जब चर्च में थे, नमाज का वक्त हुआ। रोनियस ने कहा आप यहीं पे नमाज पढ़ लें, लेकिन हजरत उमर ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर ने कहा मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता, और अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान एक दिन इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करें। और हजरत उमर ये नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियन की होली जगह को बदल दे। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी। इसके करीब ही उमर बिन खित्ताब के नाम से एक मस्जिद भी है। हजरत उमर सीधा यहाँ से बैतुल मुकद्दस की तरफ गए। यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मकदस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। फिर हजरत उमर ने अपने हाथों से बैतुल मुकद्दस की सफाई की। हजरत उमर ने बैतुल मुकद्दस की पूरी सफाई के बाद हजरत उमर के हुक्म से यहाँ मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यहीं शाम में आबाद हो चुके थे। और हजरत बिलाल ने ये ऐद किया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दोबारा कभी भी अजान नहीं देगी। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था, खलीफा हजरत उमर का ऑर्डर भी था, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आए और ने पहली मर्तबा बैतुल मकदस में अजान देना शुरू की। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान को सुनकर वहाँ सहाबा इकराम रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अजान दिया करते। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि कई दिनों तक उनके पास खाने पीने की भी चीजें नहीं होती। लेकिन इन सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे और यहाँ तक के यरूशलेम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमानों ने इतनी अजीम सिटी को फतह कर लिया, जिनसे आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मकदस में उसी तरह अजान दी जाती है। इस तरह इतनी अजीम सिटी, नबियों की सरजमीन, बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह कर लिया। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर की शहादत होगी। हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले 10 साल के अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक, इससे बड़ी एम्पायर कोई भी नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर 10 साल के अरसे में इतनी बड़ी खिलाफत बनाने का रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका।